Hi you guys, welcome back to my channel. This side Vari and today I'm doing yet another video in my lockup series and today is episode number 25. I know what y'all must be thinking, why is she on the floor? Why is she on the floor? Like, what's up with you girly? And honestly, I have so many reasons that I'm on the floor right now, but I'm gonna give you the most weirdest, which is I have a bit of an OCD that if I don't shower and go to my bed, I will not step into my bed. And मैं आज एक बहुत ही tiring day से आई हूँ you guys, and I haven't not taken a shower yet, but after this video I will. I just wanted to make this episode video and just relax, shower, and honestly I look quite good today. आज लग रहा है कि मैं मतलब बिल्कुल बिल्कुल सो के उठ के नहीं वीडियो बना रही हूँ. I'm actually taking some effort. I look cute. I have this cutest top necklace, bhenchod. I don't know what's going on with me, okay, but I was like today मैं effort मार रही हूँ तो आज तो वीडियो बनाना बनता है. तो welcome back to my channel. This is Advani and we are doing an lockup review series. अगर तुम्हें लग रहा था तुम्हें एपिसोड देखेगा नहीं है वो चीज़ ये. And because I am extremely sleepy, you might see a lot of personality differences. Don't mind that. I have a very thanda cold pani ka bottle ताकि it can keep me awake throughout this video because I'm so tired. But I know I had to make this video. So let's get started. What are we waiting for? Ta 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 ta. You know the weird part? I'll tell you guys something. The most weirdest part. Sufi Motiwala came into the show, and you know how happy Sufi, like how happy Shreya was to see Sufi. She was like, "Oh my god, oh my god," and I'm just like, you can't be like the most fakest person I've ever seen. Like इतनी ये fake बंदी है. I just cannot believe. Okay. मतलब यही बंदी इतना बिचिंग करते हैं अबाउट सूफी कि वो तो सबसे वीकेस्ट प्लेयर है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नाउ शी इज सो हैप्पी दैट ही केम बैक बिकॉज ऑफ कोर्स हर्षद वाज अ फकिंग कॉम्पिटिशन. इवन इफ यू गाइस से कि ओ वो सिर्फ शिवांगी के नाम पे चढ़ा था, ही वॉज अ फकिंग कॉम्पिटिशन. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट सूफी इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. आई थिंक सूफी इज अ कॉम्पिटिशन, बट इनको लगता है कि सूफी इज in comparison a lesser competition, which you guys, सूफी ऐसे ऐसे करके ना फिनाले पहुंच जाएगा. अभी उसने हर्षद को उड़ा दिया अगेंस्ट हिम, एंड वंस ही हैड रिमूव्ड योगेश फ्रॉम द शो अगेंस्ट हिम. सो सूफी इज I can see him going to the finale, like literally. And जैसे ही सूफी आया, आई फील लाइक सूफी इज नाउ गेटिंग मेंटली वेरी स्क्रूड बिकॉज उसको इतने मिक्स्ड एंगल्स मिल रहे हैं फ्रॉम द मेकर्स, फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स. ही इज जस्ट सो फकिंग कंफ्यूज्ड एट दिस पॉइंट. One day they say ki, oh, you want to go home, okay, then go home. Then one day they are like, oh, nahi, you don't say anything for yourself, you are like so hypocrite, you're so confused. और फिर सूफी बस इसमें जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, it's really concerning. And I think सूफी now, I don't think he has a game, honestly. वो बस इस पहलू से इस पहलू, इस पहलू से इस पहलू, लाइक अ टेनिस बॉल. वो ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे घूमता रहता है. एंड सूफी को लाइक सूफी और हर्षद में से डिजर्विंग कौन था? डेफिनेटली हर्षद, आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज ऑल्सो. बट सूफी कैसे बच रहा है, गॉड फ्रिकिंग नोज योर. लाइक आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग दिस, बट that was my dog. I'm so sorry. I don't know what's going on in this review. Like, okay, anyways. So, जैसे शिवांगी रो रही है ना that Harshad and I were playing a individual game. पता नहीं है क्या narrative बना दिया था लोगों ने. But honestly, at some point audience को भी लग रहा था that Harshad was playing for शिवांगी. तो ये सबका कहना is also valid, and somewhere or the अदर ये नैरेटिव ऑडियंस पे थोपा भी गया है बिकॉज इतना इसको जस्टिफाई करा फॉर 2 whole weeks. हर्षद को ये बोला जा रहा था, ओ यू आर जस्ट प्लेइंग फॉर शिवांगी, यू आर जस्ट प्लेइंग फॉर शिवांगी. वही हुआ यू गाइज एट द एंड. लाइक उसको इतना ज़्यादा सबने कर दिया कि हिज होल पर्सनैलिटी बिकेम शिवांगी. नाउ हिज आउट ऑफ द शो. आई थिंक ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर एंड उसको नहीं निकलना चाहिए था. बट what can we say, so I don't know अब इस घर के क्या डायनामिक्स रहने वाले हैं, बट आई सी शिवांगी क्राइंग.
I see everybody. I even see Sufi crying. Sufi should be the most grateful person right now. He should be like, oh my god, मैं वापस बच गया. Now let me show you guys my game. But वो किसी भी हफ्ते नहीं दिखा रहा. I don't understand what he's playing at. I think he wants to look weak. He wants to look like a player which is like, oh, you know, I don't know what I'm doing. Like I have no clue what the hell I'm doing. But he knows everything. I think Sufi now to me is the most smartest and dumbest player in this house. I don't know what I'm saying. Sufi is just so confused. वो मुझे खुद confused कर रहा है what he wants. ठीक है, one day he genuinely wants to go home, then the next day he's just like, oh, I'll show you guys my evil side now. You wanna see evil? I'll show you guys evil. And then अभी वो अपूर्वा को कह रहा है, I literally told you guys, if you send me home, I'll be happy. Like the fuck. क्या चल रहा है? भाई इन लोगों को समझ नहीं आ रहा. लॉकअप लिटरली सेट हर्षद होम. लिटरली लॉकअप ने कहा तुम्हें ये बंदा नहीं चाहिए, निकालो इसको. लिटरली दे टारगेटेड हिम थ्रू आउट द जजमेंट डे. उससे पहले वाला जजमेंट डे तो वो निकालेंगे ही. सबने निकाल दिया. लो बाय बाय टाटा. जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है उसी को निकाल दो. अब आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि नेक्स्ट वीक लैला को निकाल देते हैं, बिकॉज ये शो क्या चल रहा है. इतना बायस्ड फकिंग शो. दिस इज सच अ बायस्ड शो y'all. सच अ बायस्ड शो. इट्स क्रेजी. राम जी आकांक्षा चौधरी को समझा रहे हैं. देखो उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं श्रेया कालरा से शिवांगी के पास गया. वाई? बिकॉज ऑफ माई ओन बेनिफिट. आई डोंट थिंक आई डिड एनीथिंग. व्हाट डिड आई डू विद शिवांगी दैट्स गोना प्रूव कि आई डिडंट what did I do that I took advantage of this girl? Like I think she's a great leader. Like how the भाई इनके हैंड एक्शंस जो भी ये बात करते हैं so fucking ridiculous. But ये जैसे बात करते हैं it's just I think I'm getting rebel kid energy today. I don't know why. I feel like I have rebel kid energy today. So weird. But I can't take this shit. I can't take this I can't take this show seriously. Like honestly. मतलब इससे ज़्यादा biased show मैंने कभी नहीं देखा. You guys, I'm not kidding. क्या चल रहा है ये? मतलब शिवांगी शिल्पा वहाँ पे खड़े हैं कि यहाँ पे सत्संग नहीं चलेगा आज से हमारा सत्संग चलेगा. आज बाबा राम कपूर का कोई सत्संग नहीं चलेगा. आज से हम सत्संग करेंगे. सत्संग और वो कह रहे हैं स्टे ट्यून्ड. पता नहीं क्या चल रहा है ये. सो ये लोग खाना खा रहे हैं. ठीक है, अब ये बहुत अपसेट है. इनको वही पानी आलू वाला सूप मिल रहा है. ठीक है, वहाँ पे दूसरे कोने पर पूरा बोल रहे दिस वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. अब आई ऑनेस्टली हैव नो क्लू इफ अपूर्वा इज अ कंटेस्टेंट. शी इज एन इन्फॉर्मर. व्हाट द हेल शी इज. बट आई होप शी इज अ कंटेस्टेंट एंड शी विन्स द शो. बट आई डोंट नो राइट. एंड एज फॉर शिल्पा जी ऐसे कैमरा को देख रही है. And I'm just like, शिल्पा जी क्या हो गया है? Cause what's wrong with you, girly? वो कह रही है मुझे लग रहा है मुझे कोई घूर रहा है. कैमरा उनकी तरफ है. वो बोल रही है मुझे कोई घूर रहा है. And I'm like, cool girl, cool. और वो लिटरली पीछे मुड़ के फिर ऐसे खा रही है. Bro, जितनी ये घटिया है ना वो ही दिख रही हैं. एंड शी इज सॉर्ट ऑफ एंटरटेनिंग ऑनेस्टली. व्हाट डू आई से. यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट. राम जी और शिवांगी बात करते हैं. ठीक है, शिवांगी बोलती है राम जी तुमने हर्षद को क्यों वोट किया. राम जी इज लाइक देखो आई हैड 2 reasons. ओके, वन वॉज कि वो बार बार धीरज और मेरे को आके बोल रहा था इफ इट्स मी एंड शिवांगी देन यू सेव हर. भाई उसने ये कभी भी नहीं बोला कि अगर शिवांगी सेफ है और मैं कभी अनसेफ हूँ तो तुम मेरे को भी छोड़ दो. उसने ये तो कभी नहीं बोला होगा अपने मुंह से. राइट. राम जी के लॉजिक्स ही अलग है. वो बोल रहे हैं कि ब्रो ही क्लियरली टोल्ड अस कि शिवांगी देख तेरे और उसमें से उसने बोला था हमेशा तुझे सेव करने के लिए. उसने ये कभी नहीं बोला था कि तू सेव होगी तो हमें उसको भी सेव करना है. he never pitched in for himself. I'm just like what a great fucking friend you are. और ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी चल भी रही है बाबा राम कपूर. It's so fascinating to me that this is actually working for you and hats off to you buddy. And literally Apurva is like मैं ना अब शिल्पा और श्रेया मैं भी यही सोच रही हूँ guys. I have hated शिल्पा and Shreya for the past 4 bloody weeks or 3 fucking weeks, right?
I'm over it. I'm over it, honestly. I'm gonna start liking them now. Like, everybody has gone cuckoo in their heads and they're liking them. I'm gonna go cuckoo and I like Shreya and Shilpa. It's even ठीक है भाई. ओके, तो अपूर्वा इज लाइक, यू नो, मैं सोच रही हूँ भाई, मैं इनकी टीम को ज्वाइन करके शिल्पा और श्रेया की मैं इनकी वहाँ चुन देती हूँ. मेरे को अब लड़ने का मन कर रहा. क्या बंदी है भाई ये. रिवायर बोलती है कि भाई मेरे को तो पहली बात आकांक्षा चौधरी से लड़ना ही नहीं है. मुझे उसकी 12-13 ईयर ओल्ड वाले बच्चों वाली ऑडियंस तो नहीं चाहिए जो योगांक्षा करती रहती है. ठीक है, उनको ये समझ आता है दिस इज ऑल प्लान, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं तुम्हें. मैंने उससे बोला था कि तुमने प्रोमो शूट नहीं करा, तो वो कहती नहीं नहीं हमने प्रोमो शूट नहीं करा. और फिर तुम प्रोमो में वो ऐसे ऐसे यूं कर रही है. मतलब तुमने अपने आप को इतना, तुमने अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ी समझा है. देखो, I'm gonna say something, okay? मुझे आकांक्षा चौधरी की ऑडियंस नहीं समझ आती है कभी कभी, बट यू हैव टू एग्री दैट आकांक्षा चौधरी डज हैव समथिंग. उसके पास कुछ तो है दैट पीपल लाइक हर, पीपल आर फॉन्ड ऑफ हर. सेम विद रिबेल किड. भाई आई एम अ रिबेल किड लवर, यू गाइज. आई जस्ट कांट, यू नो. एंड if you take me for a audience, okay, और तुम मुझसे बोलो रिबेल किड या आकांक्षा चौधरी, I will forever choose रिबेल किड. बिकॉज रिबेल किड जैसी बंदी ना, you guys, रिबेल किड, लाइक कम ऑन. रिबेल किड का लेवल देखो और फिर उसका देखो प्लीज. एंड जो आकांक्षा चौधरी की ऑडियंस है, नो ऑफेंस टू यू गाइज, मुझे मत गाली देना, ठीक है. आई लव यू गाइज एज मच एज आई लव रिबेल किड ऑडियंस, बट लाइक, यू नो, आकांक्षा चौधरी की कुछ चीज़ें लोग इतना ज़्यादा वो कर देते हैं, छुपा छुपी. बट उसकी गलतियों को उसकी ऑडियंस कभी मानती ही नहीं है. उसने जब खाने में पानी डाला, उसने बेडशीट पे पानी डाला, उसकी ऑडियंस उसको ऐसे प्रोटेक्ट करे, सही तो किया, बट इट वॉज नॉट राइट, यू गाइस. तो आई सॉर्ट ऑफ एग्री विद अपूर्वा ऑन दिस. भाई अब सी, यू आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स टू योर ऑडियंस. शिवांगी, अब मैं तुम्हें सीन बताती हूँ क्या हुआ. शिवांगी ने हर्षद की बेडशीट उठाई, ठीक है, एंड उसने उसका कंबल उठाया और उसने बोला, यू नो, आई जस्ट कीप इट ऑन माइंड, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कहाँ सो रहा है इस टाइम, तो लेट मी जस्ट गेट दिस एंड मैं हर्षद की बेडशीट लगा के सोऊंगी. दिस इज अ वेरी कपली थिंग टू डू. आई एम सॉरी, नॉर्मल फ्रेंड्स नेवर डू दैट, ठीक है. तो मैं और क्या बोलूँ, ये कपल थिंग नहीं हुई तो क्या हुआ. एंड लिटरली नेटफ्लिक्स तो आग में ऐसे मिर्च डालता है. उन्होंने एक बॉटल वाला व्यू दिखाया, हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी की ऐसी बॉटल रखी साइड में. क्या बोलूँ भाई मैं, अब ये कपली थिंग्स नहीं है तो ये क्या है. शिवांगी, व्हाट आर यू डूइंग? यू से oh there's nothing coupley, there's nothing romantic between us, and then you're taking his bedsheet. Bro, I wear my partner's clothes, I wear my boyfriend's clothes. That does not mean मैं अपने किसी दोस्त के कपड़े पहनूंगी, कभी नहीं. So ये कपली थिंग नहीं हुई तो क्या हुआ. Weird. अब मुझे ना चमोला सबसे ज़्यादा वो लगती है टू फेस्ड. ठीक है, वैसे यू आर ऑल जोक्स एंड फन विद लैला, वरुण के साथ तुम इतना मस्त रहते हो, ठीक है. एंड अब तुम पैम के साथ अंडर द बेडशीट, यू आर टॉकिंग लिटरली अंडर द बेडशीट. आई एम नॉट सेइंग इट इन अ वियर्ड वे, बट लिटरली वो कंबल में अंदर थे पैम एंड चमोला, एंड वो बात कर रहे हैं, यू नो, कि यू नो, आई डोंट थिंक वी शुड ट्रस्ट वरुण. आई डोंट थिंक वी शुड ट्रस्ट वरुण लाइक दैट. क्योंकि जब योगेश भी था तब भी ये लोग बोल रहे थे कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. बाबा, Varun Yadav does not need any friends, first of all. He is very much capable of owning the show on his own, and he is. So, Chamole, तुम हर दिन you are just going downhill for me. Like, girly, तुमने कहाँ से शुरू करा था और तुम कहाँ आ गई हो चुगली करने के लिए. अब तुम मुझे भी वही चुगल गैंग में लग रही हो. So, yeah. भाई राम कपूर फ्रूट नहीं खाता रियल लाइफ में. मतलब क्या चल रहा है भाई राम कपूर के साथ. भाई जेन्युइनली राम कपूर जी, व्हाट्स अप विद यू मैन. तुम फ्रूट्स नहीं खाते इन रियल लाइफ. यू जस्ट सर्वाइव ऑन प्रोटीन. वाओ, जस्ट वाओ. एंड यू नो व्हाट ही इज सेइंग, उनका ब्रेकफास्ट में प्रोटीन नहीं आया आज. वो कह रहे हैं भाई मैं ना गेम छोड़ रहा हूँ, मेरे को मेरा डेली इंटेक नहीं मिलेगा तो मैं गेम छोड़ रहा हूँ. आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माई फूड. Tata Baba. And he is like, his battery is all dead. And Shilpa and Shreya are like, आज राम जी की काफी नहीं आई. हाँ 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 हाँ, so funny you guys are.
वाह लॉकअप वालों, वाह क्या टास्क दिया है। तो अपूर्वा को जेलर कैबिन में बुलाया जाता है। नाउ टुडे इज अ टास्क, ओके, अ लाई डिटेक्टर टेस्ट, बट द लाई डिटेक्टर टेस्ट इज फेक विच इज सो ऑब्वियस, ठीक है। बट अपूर्वा को टास्क मिलता है, ब्रदर यू आर द रियल लाई डिटेक्टर, तो तुम्हें यू नीड टू स्क्रैच योर नोज इफ यू थिंक दैट दे आर लाइंग, एंड इफ दे आर टेलिंग द ट्रूथ यू नीड टू स्क्रैच योर ईयर, एंड तुम सबके सच बाहर निकालोगी। भाई अपूर्वा को तो जेलर ही बना दिया है भाई, उसको इनसाइड हाउस जेलर बना दिया है। क्या आप कर रहे हैं उसके पास भगवान मालिक है, बट आई एम एक्साइटेड फॉर द टास्क, लेट्स सी। भाई तो ये पहले ही ऐसा कॉन्वर्सेशन ला रहे हैं, यू नो, कि लास्ट 2 वीक से वोटिंग की वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जा रहे हैं घर। तुम जेलर्स, तुम लॉकअप, तुम उन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की तुमने ले ली पूरे 2 हफ्ते, ठीक है। पहले योगेश की तुमने ले ली प्रॉपर आकांक्षा के नाम से, कि आकांक्षा नहीं है तो तुम दिख नहीं रहे हो, ये ना हो रहा। तुमने उस बंदे की ले ली, तुमने उसे घर भेज दिया, अब तुम उसे स्ट्रॉन्ग बुला रहे हो। पहले तो तुम उसे वीक बुला रहे थे, कितने वीक लग रहे हो, तुम तो दिखे ही नहीं, तुम तो ये नहीं, अब तुम उसे स्ट्रॉन्ग बुला रहे हो। वाह बेटा, अब हर्षद को तुमने पूरे 2 हफ्ते उसकी ले ली कि वो सिर्फ शिवांगी के लिए ले रहा है, सिर्फ शिवांगी से, हिज गेम इज लुकिंग सो वीक, ही इज जस्ट प्लेइंग फॉर शिवांगी। आज तुम उसे बोल रहे हो वाओ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर वाज हर्षद। क्या गेम खेलते हो भाई लॉकअप, तुम इतना इतना बेवकूफ हो है ना ये। कांट फकिंग बिलीव इट भाई, क्या चल रहा है ये। मतलब एक बंदे को पकड़ेंगे, ठीक है, हफ्ते में उसकी गांड मारेंगे और उसी को फिर निकाल देंगे, और उसको नेक्स्ट डे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। अब ये आकांक्षा चौधरी पे आ चुके हैं, तो आकांक्षा चौधरी के पूरे हफ्ते ये प्रॉपर लेंगे, उसको जजमेंट डे पे निकालेंगे, उसके अगले दिन क्या बोलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी वो, स्ट्रॉन्ग प्लेयर, दूसरे वीक प्लेयर के सामने वो हार गई। So I'm just so confused. So Rebel Kid को बोला कि you know you are the poster child of the rebellion. So Rebel Kid, you're going to be at risk the whole week, and तुम्हें secure करने का अपने आप को मौका नहीं मिलेगा. So I genuinely think that she is not a contestant. She will be out this judgment day. But उसने जो contribution करा है to the show, undeniably the best week of Lockup ever, and she will forever be my favorite. I really hope Lockup के बाद हम Rebel Kid को Big Boss में देखें, because I would love to see her in Big Boss, bro. I love this woman. And Rebel Kid, I don't know if you're watching this, पता नहीं तुम मेरी वीडियोस देखती भी होगी कि नहीं, like who the fuck am I to you, right? But I love you all, like I love you girl, बहुत बहुत fabulous बंदी हो तुम. But मतलब राम जी वरुण को बोला कि आज तुम लोग हमारे लिए टास्क करोगे बैटलफील्ड में, तुम जाओगे हमारे लिए लड़ोगे फॉर योर लंच। मतलब ऐसे बंदों को दिया है जो 2 सेकंड में ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे, आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। ओके सो इनका लाई डिटेक्टर में जितना भी ये लोग सच बोलेंगे उतने इनको लंच मिलेंगे, एंड दैट लाई डिटेक्टर इज नथिंग बट रिबेल किड। सो वो अपनी नोज स्क्रैच करेगी या फिर कान स्क्रैच करेगी टू टेल देम इफ इट्स द ट्रूथ और द लाई। राम कपूर और वरुण गए, ठीक है। राम कपूर से पूछा इज योर नेम राम कपूर, you know Rebel Kid does this. Of course it is, but Varun se bola are you a girl, and he's like no, and she does this. वरुण की हमेशा लेते हैं भाई, वो इतना मस्त बंदा है ना, उसकी सब लेते हैं। Now they ask is he 18 years old? I don't know if Laila is 18, right? I don't know, मुझे नहीं पता, but that would be crazy. He's 2 years younger than me. That's crazy. Okay. ये जो भी सवाल पूछे, सवाल पूछा गया राम जी से कि डू यू थिंक शिवांगी इज अपसेट बिकॉज हर्षद गया है एंड उसका एक वोट कम हो गया, उसका एक वोट बैंक से वोट कम हो गया, एंड राम जी सेज यस एंड रिबेल किड एग्रीज. वाओ, I can actually sort of believe that, but that's all. भाई ये क्या सवाल पूछा है भाई साहब. वरुण से पूछा do you think that Pam is using Akanksha Chamole's bisexuality for the game and content? Oh my god.
That's so true. And literally Varun ने guess कहा, it's so fucking true. Oh my god. So सवाल पूछा गया with राम जी कि do you think Dheeraj is the weakest contestant in lockup? And he says yes, that's truth. I agree. Dheeraj सबसे कम दिखता है. Dheeraj मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता. He's one of the most weakest players out there. Then वरुण से पूछा, उसकी तो बात लगा दी भाई. वरुण को सिर्फ वही सवाल मिले अबाउट हिज फ्रेंड्स, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोले, पैम, जो उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है, उन्हीं के बारे में सवाल पूछे. भाई मैं बता रही हूँ, ये लोग इस हफ्ते वरुण और आकांक्षा चौधरी की बैंड बजाएंगे, ठीक है, उनका गेम नस्त थस्त कर देंगे और दोनों को निकाल देंगे ऑन द जजमेंट डे, बिकॉज दिस गेम इज सो बायस्ड. बट ओके, ठीक है. सो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, लैला से पूछा कि डू यू थिंक आकांक्षा चौधरी गॉट दिस प्लेटफॉर्म एंड द फेम दैट शी हैज गॉटन जस्ट बाय लक. भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना. बेचारा वरुण गया. वो लंच के मामले में उसको लंच भी नहीं मिलेगा. बट ही आंसर्स येस एंड आई डू एग्री, बिकॉज देखो, नाउ दैट यू नो, मैंने रिव्यू दिया था एंड आई थॉट रूरू वाज रॉन्ग इन दैट सिचुएशन. वो ट्रायो युगांक्षा वाला, ठीक है, रूरू वाज रॉन्ग, आकांक्षा चौधरी वाज आल्सो रॉन्ग, योगेश वाज आल्सो रॉन्ग, ठीक है. जनरली चौधरी को बाय चांस ये फेम मिला है. अगर ये सिचुएशन डिफरेंट होती, उसको इतना फेम नहीं मिलता. तो आई हैव टू एग्री विद दैट. बट मुझे ना अब कहीं ना कहीं रूरू बहुत पसंद है. आई रियली होप वन डे मैं उसके डीजे गिग पे भी जाऊँ कभी, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने उसकी डीजे गिग की कुछ वीडियोस देखे हैं. गाइस, रूरू इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, योर लाइक extremely talented. And Ruru, I have to give it to you, you're a very strong girl. Akanksha Chaudhary by luck तो यहाँ तक इतना famous तो it's because of luck only. And Yogesh तो उस triangle में he's the wrongest person, so yeah. Oh my God, राम कपूर से बोला गया कि आकांक्षा चमोले ने अपना डाइवोर्स इस गेम के लिए स्टेज किया है. What the fuck? मतलब why am I laughing with these questions, because they are so fucking awkward. तो वैसे सवाल कैसे पूछ रहे हो, बट ठीक है. तो राम कपूर के नहीं, she is not faking it, but अपूर्वा says it's a lie, you know, it's a lie. And देखो, मुझे भी लग रहा था स्टार्टिंग में that they are faking, but now that you know Gaurav came to the show, he has clarified that they are taking a divorce. It's going to be legal after she comes out. I think they are taking a divorce for real. It's not staged. And if it is, then पॉपुलैरिटी मिल रही है उनको, और मैं क्या बोल सकती हूँ इस चीज़ में. एंड यू नो, नेक्स्ट लैला से पूछा जाता है, डू यू थिंक जो राम कपूर श्रेया कालरा वो किसेस करते रहते हैं ऑन हर चीक्स, डू यू थिंक शी गेट्स अनकम्फर्टेबल? एंड वो कहता है येस. एंड आई डू फील कि श्रेया डज गेट अनकम्फर्टेबल, पर उसने कभी मुंह पे राम कपूर के नहीं बोला है. वैसे श्रेया कालरा सब कुछ बोल देती है, बट ये चीज़ नहीं बोली, तो इट्स सॉर्ट ऑफ वियर्ड टू मी. आई थिंक शी शुड से इट ऑन द फेस इफ शी फील्स अनकम्फर्टेबल. But I also think that she does get very uncomfortable with Ram Kapoor's closeness. कोई भी होगा भाई, actually कोई भी होगा, because you know मैं भी इतना फिजिकली इतना क्लोज किसी के भी नहीं आती, इतना ना मुझे पसंद है ना मुझे you know वो पसंद है. So I agree with it. वरुण की तो ले लिया भाई, वो कैसे सवाल पूछ रहे हैं. Do you think men and women are on the same level, Varun? And he says yes. And lie detector बोलता है नहीं. Come on. तो जैसे यू नो रिबेल किड एंड लैला लड़ रहे थे ओवर दिस, आई मीन आई थिंक रिबेल किड हैज अ डिफरेंट थिंग विद लैला एंड हिज फ्रेंड्स. तो लैला के मैं दोस्त बता देता हूँ, मैं आरुष बोला, ठीक है, ये सारे लोग. भाई देखो, एज अ वुमेन आई अंडरस्टैंड वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम, बट लैला एंड उसके दोस्त आई थिंक वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं. आई डोंट थिंक सो वो इतना सीरियसली वो मीन करते हैं. बट आई ऑल्सो नो कि हिज ऑडियंस डज से द आर वर्ड अ लॉट ऑन द इंटरनेट, एंड वो कुछ नहीं बोलते हैं ना, वो मना करते हैं. तो आई एग्री विद दैट ऑल्सो, बट मैं कुछ नहीं बोलूँगी. आई एम नॉट सपोर्टिंग ईदर वन. लैला की ऑडियंस, रिबेल किड की ऑडियंस, आई एम सॉरी, ओके, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. ओके, तो आई हैव टू एड्रेस दिस अनफॉर्चुनेटली. भाई पहली बात, कोई भी ऑडियंस मेरे पे मत चढ़ना,
ठीक है, मैं बस एक ऑडियंस हूँ तुम्हारी तरह जो ये शो देख रही हूँ. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीबडी इन दिस. ये मिसोजिनिस्ट जो भी वर्ड्स हैं एंड ये जो भी लैला को पढ़ रहे हैं, भाई मैंने लैला का भी कंटेंट देखा है, मैंने रेबेल किड का भी कंटेंट देखा है. बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड, ठीक है, इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. जो लैला का कंटेंट है वो एक फनी वे में वो करता है, एक एंटरटेनिंग वे में करता है. हिज ऑडियंस इज अ बिट, आई हैव टू से दिस, वो लोग करते हैं ऐसी हरकतें जहाँ पे वो लड़कियों को गंदे कमेंट्स करते हैं, बहुत गंदी चीज़ें बोलते हैं. मैंने श्रेया कालरा के कुछ कमेंट्स देखे थे फ्रॉम लैलाज ऑडियंस एंड दैट वाज नॉट नाइस. इतना तो स्लट शेमिंग नहीं करना चाहिए एंड दैट आर वर्ड इज यूज्ड अ लॉट बाय लैलाज ऑडियंस फॉर श्योर. एंड मतलब ये एक दूसरे के कंटेंट के बारे में बोल रहे हैं. भाई ऑनेस्टली इस शो में उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? सो आई डोंट गेट इट. बट जो रेबेल किड आकांक्षा चौधरी पे गई, कि तू उसके साथ रहती है, तूने उसको मिसोजिनिस्ट करना मतलब क्यों नहीं कभी समझाया, तूने क्यों नहीं करा. आई थिंक रेबेल किड बस थोड़े गुस्से में थी, दैट्स व्हाई शी वेंट टू आकांक्षा चौधरी. और उसको तो तुम एक लाइन बोलो, वो बंदी ऐसी ईगो ट्रिगर हो जाती है उस बंदी की. आकांक्षा चौधरी वेंट ऑफ ऑन रेबेल किड. वो बोल रही भाई तुमने मेरे को उसकी माँ समझा है, तूने उसको मेरी माँ समझा है, मैं क्यों समझाऊँ उसको, मैं तुम्हारे बीच में क्यों आऊँ, I don't want to get in between you guys. मैं क्यों आऊँ, you know, like screw you all. मैं इस लड़ाई पे कुछ नहीं कह सकती because it's so sensitive कि यहाँ पे अगर मैं किसी की भी साइड लूँगी, मेरे को वहाँ से भी गाली आएगी, मुझे वहाँ से भी गाली आएगी. तो I'll choose not to say anything. मैं तुम्हें बस बताना चाहती हूँ कि आकांक्षा चौधरी और रेबेल किड की लड़ाई हुई, रेबेल किड और लैला की लड़ाई हुई, एंड आई थिंक लैला एंड आकांक्षा चौधरी आर फ्रेंड्स. तो इन दोनों की लड़ाई हुई विद रेबेल किड. दैट्स ऑल आई हैव टू से. मेरे को एक चीज़ ज़रूर एड्रेस करनी है जो कि लैला के बारे में बहुत डिफरेंटली मतलब प्रीव्यू करा जा रहा है. जैसे लैला बता रहा है अपनी ऑडियंस को टू टेल गर्ल्स आर वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे लैला बोल रहा है कि भाई इस बंदी को आर वर्ड बोलो, इस बंदी की डिसरिस्पेक्ट करो. नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं देखा है, ठीक है. जो भी वो मजाक करते हैं दे डू इट फॉर द कंटेंट. ऐसे कंटेंट बनते हैं आजकल. तो यू नो आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. बट लैला ने अभी जो बोला ना कि मेरी जो भी ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ तुम किसी भी लड़की को डिसरिस्पेक्ट ना करो. इफ यू आर माई फकिंग ऑडियंस, डोंट disrespect a woman, don't call her the R word. I have to appreciate it. Laila, hats off to you. तुमने एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव तो दिया, थोड़ा बहुत बताया कि you should never use this word for a woman. I agree, you guys. I have heard it before and it's very shitty, right? तो just don't do it. कोई भी ऑडियंस हो, तुम न्यूट्रल ऑडियंस हो, श्रेया की ऑडियंस हो, रेबेल किड की ऑडियंस हो, लैला की हो, the R word for a woman is just not okay. Don't do it. It's not cool. सो रेबेल एंड लैला ने बात करी एंड आई रियली अप्रिशिएट. जैसे लैला ने समझाया कि भाई मैं अपनी ऑडियंस को कभी नहीं बोलता, नेवर इवन यूज दिस वर्ड फॉर एनी वुमन इन माई लाइफ. सो ये वर्ड तो पहली बात मैं अपनी ऑडियंस को बोलता भी नहीं बोलता. दे आर जस्ट हेटर्स, दोज आर जस्ट पीपल दैट लव टू जस्ट कीप ऑन टॉकिंग बुलशिट अबाउट एवरीबडी एल्स. तो ऐसे होते हैं लोग दैट विल जस्ट से द आर वर्ड लाइक दैट. तो दे आर जस्ट सम स्टूपिड एज पीपल, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव्ड कि इन लोगों ने अपना सॉर्ट किया कि और जैसे रेबेल ने भी समझाया कि भाई तू सोच, तेरी बहन के साथ ऐसे, तेरे बहन के घर पे 4 लौंडे आ रखे हैं, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, शी वोंट बी कंफर्टेबल. तो लैला अपोलोजाइज कर लेता है. लैला इज लाइक आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड एंड माई फ्रेंड्स. दैट्स सो ब्यूटिफुल ऑफ हिम कि उसने ऐसे सॉरी बोला एंड उसने कहा कि भाई अब मैं अपनी ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ कि भाई किसी लड़की की भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. अब वो लोग कर रहे हैं तो आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक ओ तुम नहीं करो, लाइक ही रियली कैन नॉट डू दैट. तो आई अप्रिशिएट लैला. एंड भाई तुम एक चीज़ समझो, लैला जो भी पैम और चमोला के साथ कर रहे हैं, पैम एंड चमोला कंफर्टेबल विद दैट. उसने उनसे पूछा था यू ओके विद दिस बैंटर, दे सेड यस, दैट्स व्हाई ही डज इट, क्योंकि वो कंफर्टेबल है उससे. तो आई हैव टू एग्री कि तुम लैला, आरुष भोला, ये सारे जो भी इसके दोस्त हैं, अगर तुम इनका कंटेंट कंज्यूम करते हो and if you're watching it for the first time you might feel offensive, but as a woman I watch their content, okay? I'm cool with it क्योंकि I know it's for entertainment purposes. क्योंकि मुझे पता है they are not doing this for serious, they're doing it for a laugh, they're doing it for a joke. Do you understand? Literally. तो
इतना ज़्यादा दिल पे लेना कंटेंट इज जस्ट नॉट नीडेड. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से. ओके, वाओ. ओके, मैंने प्रोमो में देखा कि 2 गार्ड्स आए. आई नेवर एवर एक्सपेक्टेड that it would be Yogesh Rawat and Harshad. I thought for sure कि कोई और होने वाला है, but it's their re-entry हो गए, Yogesh Rawat and Harshad. I definitely knew कि अगर ये हर्षद को भी निकाल देंगे लॉकअप पे बहुत भारी पड़ने वाला है. एंड योगेश की री-एंट्री हो गई. His fans worked for him, bro. मैं like I follow Netflix India reality Instagram and मैं हर comment देखती थी, no Yogesh, no lockup, no Yogesh, no lockup. It was crazy. He boomed like anything, and I think fans really got him back in the show. I really appreciate Lockup for doing this, that they got Yogesh and Harshad back into the show. I think it's really appreciated, and I would love to see how they work now. And पहले ही योगेश आगे बोलता है, धीरज तुमने मैं तुझे एक्सपोज कर दूं. I'm not even gonna recreate it because it's so pointless. And योगेश ने श्रेया से भी बात करी कि ब्रदर, जो तुम मेरे को यूज कर रही थी ना एज कंटेंट, दैट विल नॉट वर्क एनीमोर. लाइक यू शुड बी फकिंग स्कैर्ड ऑफ मी. एंड श्रेया इज लाइक, नो आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन. तुम तो मेरे कंपटीशन थे इसलिए मैंने तुम्हें निकाल दिया, मेरे को चांस मिला, मैंने तुम्हें निकाल दिया. बट फिर श्रेया कालरा बोलती है, फकिंग हिपोक्रेट गर्ल. ओके, वो कभी भी बोलती है, नो आई वांट टू प्ले विद अ कंपटीशन, आई वांट टू प्ले विद अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन. और फिर उसको जैसे ही मौका मिलता है वो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को ही निकाल देती है. क्या बंदी है, स्टिक टू योर वर्ड, राइट? But Yogesh Rawat आ चुका है, and I'm so fucking excited to see him. I did not expect, genuinely, I did not expect कि योगेश रावत वापस आ जाएगा. But wow. सब धीरज की क्यों बैंड बजा रहे हैं? बिकॉज धीरज एक्चुअली इतना टू फेस्ड है, वो दिख रहा है ब्रो. मतलब हर्षद भी आता है, ही इज लाइक, ब्रो धीरज तू तो मुझे अपना भाई बुलाता था, तूने ही मेरा नाम लिख दिया टू गेट आउट ऑफ द शो. मतलब it's so weird that TV actors say that they are insecure of each other, and it fucking shows. मतलब see, 2 women of the TV industry, which is Shilpa Shinde and Shivangi, they voted like for him, but the 2 male TV actors opposed of Harshad, उन्होंने उसके against vote किया, which is good point. Harshad, finally you're opening a fucking mouth. I like that. Okay, task time. I'm super excited. So Yogesh chose Dheeraj as his competition for this challenge, and Harshad chose Sufi for the challenge. I think Harshad is quite smart. उसको पता है कि सूफी इतना अच्छा नहीं खेलता टास्क में, तो he will lose. But धीरज बहुत अच्छा खेलता है. बट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, जब श्रेया से भी वो हार गया था, उसने ऐसे एक हाथ ऐसे छोड़ रखा था, तो ही इज क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट, तो उसको वो पक्का बीट कर सकता है. एंड आई रियली थिंक दे आर वेरी अनडिजर्विंग इन कंपेरिजन टू योगेश एंड हर्षद. आई डेफिनेटली एग्री. लेट्स सी कौन जीतता है इस चैलेंज में. जो भी हारेगा दे विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम लॉकअप. सच एन एक्साइटिंग टास्क, एंड आई डू फील कि हर्षद विल विन दिस टास्क अगेंस्ट सूफी, एंड Yogesh will win this task against Dheeraj, but Dheeraj भी जीत सकता है. Honestly, in that way, I am not really sure. But Sufi Harshad में मैं बहुत sure हूँ, because Sufi already, when he is not even in the task, वो पहले ही सबको बोल रहा है bye, bye. तो already अपनी हार already मान चुका है in his head, so I don't know. मतलब it's just too funny to me, bro. हर्षद, मतलब शिवांगी is there, okay, throwing these sandbags, and हर्षद ऐसे कैच कर रहा है, ऐसे कैच कर रहा है, और वो सूफी को ऐसे फेंक रहा है, and Sufi is like this. Sufi is beyond cute, but he's getting terminated for sure. I can tell. I think Sufi का highlight था in this game, bro. He's not doing anything to get the sandbags from Harshad. He's like, Rebel is like, उसको tickle कर ले भाई, and she's like, he's not ticklish, bro. मैं क्या करूँ? दे दिया उसने भाई. It's so fucking cute and funny, Sufi. I love you, but you're getting so terminated, man. Shivangi, the way that she played for Harshad, उसने दिखा दिया bro. It's not one-sided. Literally, उसने दिखा दिया, because वो जैसे हर्षद के लिए वो कर रही थी ना, वो sandbags throw कर रही है, genuinely shows कि it's 2 ways. And वो हर्षद के लिए sandbags फेंक रही है. She is not moving from her position. She is like, हर्षद ही जीतेगा. वो वहीं पे खड़ी है, उसे लोग बोल भी रहे हैं हट जाओ यार, दूसरे लोगों को तो मौका तो दो. She is just standing there and taking a stand for Harshad, and that just shows you guys कि सिर्फ हर्षद की साइड से सिर्फ शिवांगी नहीं है, शिवांगी की साइड से भी हर्षद है, and it generally shows a true friendship. I love them. I think जो अभी शिवांगी कर रही है, a girl
in love or loves whatever, but वो दिख रहा है and it's so cute, adorable. Sophie, Sophie, I love you so much, literally. वो जैसे he got terminated, you guys. It was quite obvious. मतलब उसने try किया, but नहीं किया. And जैसे वो जा रहा था, उसने कहा, you know, people think I'm this badass bitch, but I'm genuinely this. Like, I'm a sensitive person at heart. I cry over everything. Sophie, you made me a fan of you. Okay, I love you, queen, king, everything. I love you, and I hope you have a good journey ahead. And he's gonna reveal all his secrets. Wow, that's gutsy, and I have to salute him for that. कि सूफी जाते जाते भी अपने तीनों सीक्रेट बता के जा रहा है कि ले मेरा गेम पूरा मैंने तुम्हें दे दिया. Sophie, I appreciate you. I love you so much. Thank you for revealing all your secrets. I have not heard it yet, but thank you so much. So Sophie के तीनों secret. My God, Sophie, you're making me fall in love with you, literally, man. But his first secret was that, you know, he fell in love with two male friends and he lost them, and that's why he has that emptiness and loneliness in his heart, which Sophie, I think the audience will love you and they'll make you feel whole again. I promise you that. His second secret was that, you know, when he was in college in DU, so uski grandmother passed हो गई थी. She passed away, and 2 days earlier she had tried calling him, but उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया due to whatever reason, and she passed away. And उसकी family ने उसकी grandmother की funeral भी नहीं attend करनी थी. That's so unfortunate. But and his third secret was कि his third secret was that he was in a hostel, and उसके पास एक roommate था, and he used to sit and watch Sophie sleep at night. And one day he forced himself on Sophie. He tried kissing them, etc, etc, and Sophie pushed this guy off of him. He went running towards his जो warden type होते हैं, operator whatever, and he went to them and he's like, you know, I reported that incident immediately. And he's like, तू उसके साथ क्यों सो रहा है, मेरे साथ सो जा. That's what his warden said to him, and that's why he locked himself in the washroom that other day, because he gets so traumatized by that fact. Sophie, I love you. I hope you take care of yourself, and I hope you get this emptiness and loneliness off of your heart, and I hope you heal. I hope you really heal from within. I wish you all the best in your journey ahead, and kudos to you. You're a very fun guy to watch. You're extremely sensitive, I can already see that, and I really hope you do well in your life. So yeah, I love how Sophie went. They got me, girl. They got me. Tata. I love you, Sophie. You're so cute. But I did not understand one thing. Okay, Sophie went. I'm very sad about that. But love you, Sophie. You do well in your life. But why was Shivangi crying? वो वहाँ पे रो भाई. शिवांगी को मुझे कभी कभी सीरियल को लगता है भाई, why is she crying? She chose to save Harshad over Sophie. So why is she crying now? Girl, something is wrong with your mind. And next गया योगेश versus धीरज. Of course आकांक्षा चौधरी सबसे पहले खड़ी थी भाई. मेरा बंदा वापस आएगा, मतलब नॉट मेरा बंदा, आई एम नॉट सेइंग दे आर इन अ रिलेशनशिप, बट मेरा दोस्त वापस आएगा, व्हिच इज योगेश फकिंग रावत. आई एग्री, योगेश को आना चाहिए बिकॉज धीरज इतना कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, और योगेश रावत जब शो में आएगा ही इज गोना बी द टीआरपी. सो आई वांट हिम बैक. एंड चौधरी ऐसे ऐसे स्टैग फेंक रही है, एंड यू नो आई थिंक धीरज वाज ट्राइंग टू गेट द सैंड बैग, बट योगेश रावत इज एन एस परफॉर्मर बेबी. ही विल नेवर लेट यू डू दैट. योगेश कितना हरामी है. वो आकांक्षा चौधरी को बोले उधर भी तो भेज, और फिर वो धीरज को ऐसे पुश करके वो सैंडबैग उसकी साइड से उठा के वहां अपनी साइड में दे रहा है. वाह भाई योगेश, बड़ा चालू आदमी है ये. योगेश, आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस. उसने क्या कहा, भाई आकांक्षा हट जा, राम जी को आने दे. राम जी ने धीरज पे ही शॉट मारे. योगेश इज लाइक भूफ, वो लिटरली मंकी बन गया. इज लाइक जंपिंग, एंड आई वाज सो थ्रिल्ड टू वॉच. मतलब मेरे को इतनी नींद आ रही थी और अब मैं इसकी परफॉर्मेंस देख रही हूँ. वाह योगेश, वाह, फकिंग अमेजिंग मैन. जो तूने खेला ना, और जो तू कितना हरामियों की तरह योगेश बोल रहा था. देख
उनकी तरफ मार, मैं कर रहा हूँ और वो ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे उछाल के वो ऐसे हैंडबैग दे रहा है जैसे इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर. योगेश रावत फॉर यू गाइस, फकिंग एस परफॉर्मर, लव्ड हिम. धीरज ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? आई थिंक उसकी नस खिंच गई थी, आई डोंट नो. धीरज वाज एक्टिंग जस्ट टू वियर्ड टू मी, ठीक है. he's holding his hands, he's holding his neck like this. भाई इतना तो फिजिकल ये टास्क भी नहीं है. इट्स जस्ट फकिंग कैचिंग सैंड बैग्स एंड गिविंग इट टू योर बास्केट. सो आई थिंक उसकी नस खिंच गई थी, आई डोंट नो, पर ये थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक लगा. बट आई नो एक्टर्स डू दैट, so I'm sorry. But the way Yogesh played, he clocked it. देखो भाई, Yogesh won. Of course he would win. He's the bloody ace performer. Yogesh Rawat is back in lockup. I'm so excited to watch him. But जब धीरज गया, ठीक है, धीरज जा रहा था एंड यू नो वहाँ पे श्रेया एंड रेबेल खड़े हैं. वो कह रहे हैं अभी देखना पानी आएगा. एवरीबडी एक्ट्स हियर सो मच. क्यों कहना था तुम दोनों को ये? अब तो मुझे रेवेल पे भी क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डिड यू हैव टू से दैट? ही इज फकिंग गोइंग, इवन इफ ही इज एक्टिंग, ही इज गोइंग होम. तो नॉट अप्रिशिएटेड फ्रॉम बोथ ऑफ यू गाइज. मतलब रेवेल, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, दिस इज वाइल्ड. ओके, सो योगेश इज बैक इन लॉकअप, धीरज इज आउट ऑफ द शो एंड वहाँ पे रामजी बोल रहे हैं टू धीरज की देख भाई, मैंने तुझे वीकेस्ट बोला था, बट सिंस डे वन यू हैव नेवर वेंट टू द जजमेंट डे. धीरज, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट मैन. एंड रामजी, यू आर सो डिप्लोमेटिक एंड हिपोक्रेटिक, इट्स जस्ट बियॉन्ड मी, ठीक है. बट उसके बाद मैं प्रोमो देख रही हूँ एंड प्रोमो में मैं क्या देख रही हूँ गाइस? What the fuck is this promo? प्रोमो में सबके सीक्रेट्स एक दूसरे को बोले जाते. मतलब आकांक्षा चौधरी का शिल्पा जी के पास है, श्रेया का आकांक्षा चौधरी के पास है, सबकी लाइफ लाइन्स मरने वाली है, सबके सीक्रेट्स बाहर आने वाले प्रोमो में. आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड टू सी the next episode, and I'm so bloody excited, you have no idea. But with that being said, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please like and subscribe, it would mean the world to me. Kar lo bhai, tumhara kuch nahi jayega. Okay, I'll see you guys tomorrow. I'm so tired. Okay, good night, bye.